Let's student now we discuss about meiosis. Meiosis is another kind of division which is occur in I already described in a sex cells. These divisions are necessary for the formation of zygote, and this division is necessary for reproduction. This division are the phenomena when we define it, that it is a kind of division in which parent cell divide into four daughter cell with a reduced half chromosomal numbers, haploid cells also they call. उन सेल्स को जो मायोटिक डिवीजन के नतीजे में बनते हैं उनको हम हेप्लॉइड सेल्स कहते हैं, बिकॉज उनमें उनमें क्रोमोसोमल नंबर जो होता है वो हमारा एन क्रोमोसोमल नंबर आता है। और इनकी जो फेजेस होती हैं मियोसिस की, दे आर टू काइंड्स ऑफ फेजेस, मियोसिस 1 एंड सेकंड इज कॉल्ड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के नतीजे में ड्यू टू द मियोसिस 1 विच इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन फेज, फिनोमेना ये होता है कि एक सेल डिवाइड होता है हाफ क्रोमोसोमल नंबर्स के साथ टू डॉटर सेल्स में, विच अगेन रीडिवाइड माइटोटिकली वे में, वो माइटोटिक प्रोसेस की तरह डिवाइड होके मजीद टू सेल्स बनाता है, और इस तरह टोटल सेल्स जो डिवाइड होके बनते हैं वो 4 सेल्स होते हैं। दिस माइटोटिक डिविजन अकर in animals and in a form of which produce sperm cells and egg cells, male and female. And when this phenomena of meiosis occur in plant cells, uh, the male parts produce pollen grains and the female parts of plants produce ovule due to the process of meiosis. Now we discuss one by one the phases of mitosis. As like we discuss the phases of mitosis, we discuss the phases of meiosis. Same as how it different from mitosis. Meiosis is different from mitosis in the number of chromosomes. In the process of meiosis, in the process of mitosis, number of chromosomes as the number of parents. 46 in human being retain 46 after mitosis, while in the meiosis chromosomal number reduced from half as the parental chromosomal 46 reduced into 23 chromosomal number in the gamete cells. These cells are called gametes or gamete cells. Now, if we discuss the phases of meiosis, in the process of meiosis, interphase is as like the interphase of mitosis. In the interphase process, as like mitosis, cytoplasm material, chromosomal material accumulated, chromatin materials divided and replicated, and cytoplasm also prepare for division, organelles doubled for prepared for division, and meanwhile when these whole phenomena are goes take place, prophase 1 started. In prophase 1, this is a very very crucial phase of meiosis process, in which very special kind of chromosomes are formed. What the special kind of chromosome? Yes, homologous chromosome, which are different from chromatids. How it different from chromatids? It is different from chromatids that these chromosomes are same two kinds of chromatids combined and paired. These two chromatids are alike in their structure, alike in their genes. These two pair of chromatids are called bivalent pair, and also called homologous pair. These homologous pair are basically tetrad. You can say कि 4 structures होते हैं
क्रोमेटिड्स के जो कंबाइन कर जाते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स, और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहीं पे बेटा जी रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब आपके ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो पेयरिंग करके 23 होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। 23 पेयर्ड ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और वो 23 पेयर्ड ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जब भी यहाँ पे कंबाइन करते हैं, अब उसमें एक बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा खूबसूरत फिनोमेना उसके अंदर अकर होता है। ये ऐसे मैं आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर विजन के लिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये 4 टेट्राड्स हैं जिसको हम कह रहे हैं, ये 4 और 2 सेंट्रोमियर से ये जुड़े होते हैं। ये चारों क्रोमोसोम्स में ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और ये दोनों पेयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर एक फिनोमेना आकर होता है जो कि प्रोफेज में होता है, उस फिनोमेना को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एंड सिनैप्सिस। साइनॉप्सिस और क्रॉसिंग ओवर क्या फिनोमेना है? इस फिनोमेना में ये पीस ऑफ क्रोमेटिड आपस में अपने आप को एक्सचेंज कर देते हैं, और ये इस तरह से इनकी पहले पेयरिंग होती है। मैं आपको यहाँ पे ये फिनोमेना ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये इस तरह से ये हिस्सा ब्रेक हो जाता है, और ये हिस्सा ब्रेक होके इसकी जगह लग जाता है, दिस वन, और ये हिस्सा जो है ये सेपरेट हो जाता है, ये इसका हिस्सा था। अगर हम आपको ये देखें, ये फिनोमेना, इस फिनोमेना में ये पार्ट जो है ये ब्रेक होके इसके साथ जुड़ गया, और इसका पार्ट ब्रेक होके यहाँ से इसके साथ जुड़ गया। नाउ द नेक्स्ट फिगर जो बनती है हमारे पास, नेक्स्ट जो इसकी डायग्राम आती है सिस्टर क्रोमेटिड की आफ्टर एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, कुछ इस तरह की आ जाती है होमोलोगस पेयरिंग पे। Do you understand this? After the phenomena of crossing over, the next we discuss about as prophase other stages which occur. It's same like the mitosis. As in occurring mitosis, nucleolus disappear, nuclear membrane disappeared, and spindle fiber rearranged in the center of from one centriole to the second centriole. This process complete of prophase, metaphase is start. The metaphase phase, these homologous pair arranged as like arrangement of chromatids in a mitosis along the spindle fiber. बेटा यहाँ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे क्रोमेटिड्स के टू पेयर जो है वो अरेंज हो रहे थे, जबकि यहाँ पे जो इसमें अब अरेंजमेंट हो रही है मियोसिस में, ये टेट्राड्स की अरेंजमेंट हो रही है। 4 क्रोमेटिड्स आपस में होमोलोगस की शक्ल में यहाँ पे अरेंज होते हैं एज लाइक द माइटोटिक अरेंजमेंट, बिल्कुल वर्टिकली अरेंज होते हैं सेंट्रियोल के वजह से और स्पिंडल फाइबर के ऊपर। आफ्टर दिस अरेंजमेंट द मेटाफेज इज कंप्लीटेड and then anaphase started. In anaphase, centrioles pull back the spindle fiber, और स्पिंडल फाइबर को जब वो खींचना शुरू करता है, पुल बैक करना शुरू करता है, तो दीज होमोलोगस पेयर, यहाँ पे जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज दैट कि उसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, यहाँ पे होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं जो 2 क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होते हैं, 2 डिफरेंट आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल पेयर्स अलग होते हैं। इट्स मीन के 1 क्रोमेटिड पेयर जो है वो इधर चला जाता है और 1 क्रोमेटिड पेयर यहाँ मूव कर जाता है दरमियान से सेपरेशन होने के बाद। और ये जब क्रोमेटिड पेयर सेपरेट हो जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को अगेन ड्रॉ करके आपको दिखाएं तो क्या होता है कि ये देखें, जैसे ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर पुल बैक हो रही है, इसमें ये एक क्रोमेटिड पेयर है, ये एक क्रोमेटिड पेयर है, ये एक क्रोमेटिड पेयर है और ये एक क्रोमेटिड पेयर है। जो ये क्रोमेटिड पेयर इस होमोलोगस क्रोमेटिड से अलग हुए,
ये क्रोमेटिड पेयर अपने इस होमोलोगस क्रोमेटिड पेयर से सेपरेट हो जाता है। इस तरह जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स, दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स कंबाइनली थे, वहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होके हाफ नंबर के साथ, एन नंबर के साथ ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं एनाफेज में। आफ्टर कंप्लीटिंग एनाफेज, टेलोफेज स्टेज स्टार्टेड। इन टेलोफेज these homologous chromosome pairs again reopen of जब अपने ये सेंट्रियोल पर पहुंचते हैं, सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाती है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर होके यही होमोलोगस क्रोमोसोम अनक्वायर्ड होके दोबारा से पेयरिंग की बजाय होमोलोगस रिपेयर्ड होते हैं और दोबारा से ये बन जाते हैं सिंपल क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम थ्रेड्स बन जाते हैं। दीज टेलोफेज 1 कंप्लीट होता है, एनाफेज 1, मेटाफेज 1 और प्रोफेज 1, ये सारी फेजेस कंप्लीट होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस ये आता है कि जैसे हमने उसमें देखा था कि इन्वर्जन स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे सेंट्रियोल्स आपस में इन्वेटेड होना शुरू हो गया था और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई थी। बट इन मियोसिस स्टेजेस में प्रोफेज 1 से स्टार्ट होके टेलोफेज 1 तक पहुंचने के बाद ये दोबारा से सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, दोबारा से सेंट्रोमियर जो है वो इनके इर्द गिर्द अलग से बनना शुरू हो जाते हैं, इसके गिर्द अलग से और इसके गिर्द अलग से बनना शुरू होते हैं। और यही जो क्रोमोसोम्स के पेयर अलग हुए थे वो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन के लाइक माइटोसिस फेज की तरह प्रोफेज 1 में पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं और वो अरेंज होते हैं सेंट्रियो उसके ऊपर, स्पिंडल फाइबर के ऊपर। मेटाफेज 1 में उनकी अरेंजमेंट होती है बिल्कुल उसके ऊपर जैसे माइटोसिस में हुई थी। मैंने रिपीट नहीं कर रही इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस सेम उसी तरह का है जैसे मैंने आपको पीछे माइटोसिस में बताया। इसी तरह माइटोसिस प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 1 में ये दोनों प्रोसेस माइटोसिस की तरह होते हैं। फिर एनाफेज 1 में यही अरेंजमेंट होती है कि स्पिंडल पुल बैक होते हैं और ये यहाँ से सेंटर से सेपरेट होके ये और ये अलग से पेयर बन जाते हैं। और जब ये अलग से पेयर बनते हैं इधर और इधर के, तो टेलोफेज के अंदर इनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। नाउ आप अगर गौर करें कि यहाँ पे एक ही सेल के अंदर पहले दो सेल न्यूक्लियोलस, दो न्यूक्लियस डिवाइडेड हुए, दो न्यूक्लियस बने, अब उनके अंदर 4 न्यूक्लियस बन गए। और जब ये 4 न्यूक्लियस बनते हैं तब यहाँ पे बच्चे इन्वेजन होती है साइटोकाइनेसिस की और चारों के अलग अलग जो है वो सेल कंबाइन डिफरेंट, यानी यूँ समझिए कि पहले ये डिवीजन होती है और फिर ये और ये डिवाइड होके जब मज़ीद अब आपके पास सेल गेन होते हैं, वो कौन से सेल गेन होते हैं, जो डॉटर सेल बनते हैं 1, 2, 3, 4, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये और एक सेल ये बेसिकली साइटोकाइनेसिस के बाद का स्टेज आता है। और ये इस तरह से एक सेल बॉडी का डिवाइड होके गैमिट सेल मियोसिस के ज़रिए 4 गैमिट सेल्स बनाता है जो कि रिड्यूस होते हैं, जिनमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ होते हैं, n होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो सेल बने हैं इनमें अगर हम ह्यूमन की बात करें, एक एग सेल बनता है और बाकी हेल्पिंग सेल्स और सोमैटिक सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर हम स्पर्म्स में बात करें तो स्पर्म्स में ये चारों एक्टिव स्पर्म्स बन जाते हैं, ठीक है, एक्टिव स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स में बात करें तो एक एग सेल बनता है और बाकी 3 फूड गिविंग सेल्स बनते हैं, उसको हेल्पर सेल्स का नाम दिया था। और अगर हम प्लांट्स के पोलन की बात करें तो पोलन ग्रेन्स में ये चारों सेल एक्टिव पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। दिस होल phenomena occurs in the meiosis. Diagrammatic difference of mitosis and meiosis. Now students, we close our lecture by summarizing the both phenomena, but I describe you the key differences of both meiosis and mitosis. मैं अपने पूरे लेक्चर को समराइज करूंगी इस टेबल से
जिसमें मैंने इसको इसकी डिफरेंस बताई है आपको। नंबर 1 में अगर हम देखें कि डिफरेंस में सेल टाइप, माइटोसिस का सेल टाइप जो होता है वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, जबकि मियोसिस के सेल टाइप गैमेट सेल्स होते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो सोमैटिक सेल्स पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं, व्हेन द गैमेट सेल्स जो होते हैं वो ओनली जेनिटलियास के अंदर या स्पेशल सेक्स लोकेशन, जो सेक्स सेल्स जहाँ की उनकी लोकेशन होती है उनमें पाए जाते हैं। जैसे एनिमल्स में स्पेशल जेनिटलियास होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर, और प्लांट्स में ये फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन अगर देखी जाए, मियोसिस की नंबर ऑफ डिवीजन 1 होती है। 1 टाइप ऑफ डिवीजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये फेजेस होती हैं। मियोसिस में 2 टाइप्स की डिवीजन होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अगर हम डॉटर सेल्स की बात करें तो माइटोसिस में जो एक सेल पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है जो कि सेम आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो एक सेल डिवाइड होकर मियोसिस 1 के जरिए 2 डॉटर सेल्स एंड देन अगेन डिवाइड होकर मजीद 4 जो वो 2 डॉटर सेल्स हैं वो मजीद 2 सेल्स बनाते हैं, यानी टोटल काइंड जो सेल्स बनते हैं वो 4 सेल्स बनते हैं जो कि n नंबर्स के होते हैं। क्रोमोसोमल नंबर इसमें सेम टू पेरेंट्स होता है, 2n होता है, और मियोसिस में क्रोमोसोमल नंबर हाफ होता है। फिर अगर हम बात इसकी एग्जांपल की करें, जैसे ह्यूमन में क्रोमोसोमल नंबर 46 होता है, तो माइटोसिस में क्रोमोसोमल नंबर 46 ही रहता है, जबकि मियोसिस की डिवीजन में क्रोमोसोमल नंबर 23 हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये पर्पस के लिए होता है, तो माइटोसिस जो है वो रिपेयरिंग, ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए होता है, और मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अगर हम इसकी सेल टाइप की बात करें तो सेल जो है इसमें बनते हैं वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं, और मियोसिस में जो सेल्स बनते हैं वो जेनेटिलिया जेनेटिक वेरिएशन के साथ आते हैं। जैसे मैंने आपको अभी क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना बताया, तो क्रॉसिंग ओवर्स में जीन्स जो होते हैं वो वेरिएटेड हो जाते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं, मुख्तलिफ पेयर्स को जोड़ते हैं, उसके सेगमेंट्स को क्रोमेटिन मटेरियल्स के, तो उसमें कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन होने से, क्रॉसिंग ओवर होने से फिनोमेना चेंज हो जाता है और बहुत सी वेरिएशन क्रिएट्स होती हैं। तो मियोसिस जो है वो बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। बेटा ये सारा मेरा प्रोसेस और लेक्चर था मियोसिस और माइटोसिस पे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई भी आपने पूछना हो, तो काइंडली मुझे आप मेरे चैनल पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई टॉपिक मेरे बायो से रिगार्डिंग या किसी और सब्जेक्ट से रिगार्डिंग समझना हो, तो आप उससे रिलेटेड भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको वो लेक्चर जो है वो दूंगी। और आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।